तो आज हम बात करेंगे टुडे वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ एंड वी हैव टू सॉल्व अराउंड 10 numerical questions on electric flux and Gauss law. So we are talking about electric flux and Gauss law. Our first question is the SI unit of electric flux is. There are four options. SI unit of electric flux. What are the SI unit of electric flux? So let us see. There are four options. One is the Weber, but we know that Weber is not the SI unit of electric flux, right? So it is the cancelled out. Now Newton per Coulomb, since phi is equal to E dot EA cos theta. Simply phi is equal to EA cos theta. The unit of E is Newton per Coulomb and A unit of A is meter square. So Newton meter square per Coulomb, Newton meter square per Coulomb will the unit. Now, but here, here is given that nothing is Newton meter square per Coulomb. So Newton per Coulomb is also not applicable. Voltmeter, let's check it out. Maybe joule per second. It cannot be joule per second. One thing, Newton meter. We call the Newton and meter. Newton meter as joule. So joule meter upon Coulomb. Joule meter per Coulomb. We can write it as a joule meter per Coulomb. We can write it joule meter per Coulomb, right? So joule meter per Coulomb. The joule per Coulomb is called volt. So voltmeter, it will be voltmeter. What will be the correct answer? It will be the voltmeter. Correct answer will be voltmeter. Once again I am going to tell you, since Newton per Coulomb into meter square, that is Newton meter square per Coulomb will be the unit of electric flux, but Newton meter is called joule, so joule meter per Coulomb, but joule per Coulomb is called volt, so it is voltmeter. So voltmeter is the correct one, so C is the correct answer. Fine. Now our next question is, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi 1 and phi 2, the electric charge inside the surface will be. Let's electric flux entering leaving an enclosed surface. So electric flux is leaving and entering into the enclosed surface. Let this is the enclosed surface. This is a enclosed surface. Fine. So then electric flux is entering and phi 1 is entering. So phi 1 will be negative and phi 2 is coming out. So phi 2 will be positive. Since if there is electric flux outside the closed surface, then there will be no electric field in the inside of the surface. But it is asking that phi 1 and phi 2 are not. In this case, phi 1 and phi 2 should be equal. Phi 1 and phi 2 should be equal. But phi 1 and phi 2 are not equal here. So there will be electric flux, net electric flux. So how much will be net electric flux? Phi 2 minus phi 1. How much will be the net electric flux will be phi 2 minus phi 1, phi 2 minus, sorry, this is the phi 1, phi 2 minus phi 1 into V this is the flux. So we know that phi is equal to Q upon epsilon naught. So Q will be equal to phi into epsilon naught. So this is phi 2 minus phi 1 is the phi, delta phi and epsilon naught. So phi 2 minus phi 1 into epsilon naught will be the our correct answer. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू. एक बार फिर से हिंदी में ज़रा डाल लेते हैं. पहले वाला हमने देखा था कि ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होता है वो क्या होता है, ई ए कास थीटा हो जाता है. सिंपल तरीके से हम बोले तो ई ए कास थीटा का तो यूनिट नहीं होगा. ई जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर. इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, ये यूनिट हो गया. और न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल. न्यूटन मीटर क्या कहते हैं, जूल. तो जूल मीटर पर कूलाम, बट जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट. सो वोल्ट मीटर विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर गिवन इन द 4 ऑप्शंस. फाइन. अब दूसरे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम. दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो कह रहा है कि एक क्लोज सरफेस है. इस क्लोज सरफेस से phi 1 और phi 2 जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रमशः इंटर कर रहा है और जा रहा है. तो जो इंटरिंग है वो phi 1 है,
जो आउट गोइंग है वो φ2 है। φ1 φ2 इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो इसका मतलब कैंसिल आउट कर देता। आप चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ज़्यादा हो रहा है, जो कमिंग आउट है यानी जो बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ज़्यादा है, जो अंदर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो है कम, तो इसका मतलब है कि अंदर में कोई चार्ज है। तो कितना चार्ज होगा, जो फ्लक्स का जितना दोनों फ्लक्स है, क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कमिंग आउट है, एंटरिंग है, और जो कमिंग आउट होता है वो पॉजिटिव होता है, एंटरिंग वाला नेगेटिव होता है। इस तरह से डिफरेंस कितना आ जाएगा, φ2 माइनस φ1 का डिफरेंस कितना होगा, φ2 माइनस φ1 का डिफरेंस होगा, और यही जो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा अंदर जो चार्ज होगा उसके कारण। तो इस तरह से जानते हैं आप φ इक्वल टू होता Q अपन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से। इसका मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ इंटू एप्सिलॉन नॉट। φ मीन्स यहाँ φ2 माइनस φ1 है इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिंपल तरीके से। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, AIEEE 2003 का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं, कह रहे कंसिडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। कह रहे कि ये फिगर है, फिगर में एक जो है स्फीयर है टाइप का बना हुआ है, उसमें प्लस Q1 और माइनस Q1 है, और एक चार्ज और है Q2 है जो बाहर में है। क्लियर है, ये चार्ज है। व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू। कह रहा है कि जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण होगा, Q1 प्लस Q1 के कारण, या माइनस Q1 के कारण, या Q2 के कारण। तो क्या होगा, ऑल आर द चार्जेस, यानी जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं वो सारे चार्जेस के कारण फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑल द चार्जेस होगा यहाँ पे आंसर करेक्ट, क्योंकि फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस के थ्रू, चाहे वो बाहर में होगा उसके कारण भी फ्लक्स होगा, अंदर में होगा उसके कारण भी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाहर वाला चार्ज होगा, अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो जो अगर बाहर वाला चार्ज होगा, अगर सॉलिड है यानी क्लोज सरफेस है, तो बाहर वाले चार्ज के कारण जो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल होगा, इसलिए वो कैंसिल आउट होगा। तो मेन फ्लक्स क्या होगा, Q1 Q2 के कारण। बट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स को तो सबको कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हम क्या आंसर लिखेंगे, ऑल द चार्जेस। तो ये था आपका, ये देखिए IIT JEE स्क्रीनिंग का 2004 का क्वेश्चन था। आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं ये स्क्वायर सरफेस अब साइड एल, कह रहे कि स्क्वायर है, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये पेपर है, प्लेन के पेपर में है, ये स्क्वायर है। कह रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर, कह रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो वोल्ट पर मीटर, ऑल्सो इन द प्लेस ऑफ द पेपर, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पेपर पे ही, ये जो स्क्वायर भी पेपर पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है उसी पेपर पर ही है। क्लियर है, उसी प्लेन पर ही है। क्लियर, इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर। और कह रहा है ये भी लिमिटेड है, यानी कि जो लोअर हाफ पोर्शन है उसी पर है, लोअर हाफ पोर्शन है उसी पर है, ये नहीं है कि पूरे स्क्वायर पर है, यानी हाफ पोर्शन पर ही है। द फ्लक्स इन SI यूनिट एसोसिएटेड विद द सर्फेसिस। तो सरफेस से फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, तो ज़रा देखा जाए, जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये इस तरह से ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो E और DS, E और एरिया A कह ले, चाहे वो हम एन कैप कह ले, एरिया वेक्टर का, दोनों की डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 90 डिग्री का फर्क आ रहा है, क्योंकि एरिया हमेशा, एरिया जो होता है सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कंटेनिंग द एरिया, जिस एरिया में सरफेस रहता है, सॉरी जिस सरफेस में एरिया रहता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब E और एरिया में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। और जानते हो कि ये cos 90 अगर हम करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ये भी CBSE PMT 2006 का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। A cylinder of radius R and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis. The total flux of the surface of the cylinder is given by। तो let us understand the question। कह रहा है एक सिलेंडर है, मान लेते हैं ये सिलेंडर है, तो कह रहा है कि सिलेंडर ऑफ रेडियस R, कैपिटल R इसका रेडियस है, और लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। इस प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो है क्या है, इसी के पैरेलल है, ये फील्ड भी है इसके एक्सिस के इस तरह से पैरेलल है। क्लियर है, E पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज, जो टोटल फ्लक्स होगा, तो ज़रा देखा जाए
जो टोटल फ्लक्स होगा वो बात करें तो आप जानते हो क्लोज सरफेस के लिए जितना इनकमिंग फ्लक्स होता है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, आउटर हो, अंदर में कोई चार्ज ना हो। तो यहाँ अंदर में कोई चार्ज तो दिया नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर विल बी जीरो, करेक्ट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ये देखिए CPMT 1975, RPMT 2002 एंड KCET 2004 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। इन ए रीजन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई E = 2I 3 से प्लस K कैप in Newton per coulomb. The electric flux through a surface S = 10 I cap meter square in the region is. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब, तो E इंटू एस कास थीटा, वेक्टर E डॉट वेक्टर S होता है, सो फाई होता है। फाई की वैल्यू कितनी होती है, फ्लक्स की बात करें हम तो फ्लक्स जो होता है E स्केलर प्रोडक्ट होता है E और S का, यानी एरिया, अगर S एरिया है और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उन दोनों का वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में जो होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कास जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सेम होगा। तो अब ज़रा देखा जाए आई का जब मल्टीप्लाई आई के साथ में हम करेंगे, जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, आप दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो जैसे ये हो जाएगा आपका ये इंटू, अब बात करेंगे हम लोग 10 आई कैप का इंटू डॉट 10 आई कैप। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा 10 का आई के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 20 आई कैप, 1 हो जाएगा 20 हो जाएगा। बट अगर जे और के के साथ में प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो जो एंगल आएगा 90 डिग्री, इसलिए 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 20 न्यूटन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका है, तो 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा आंसर। तो यानी कि डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या आई थिंक समझ में आ गया होगा, जब आप स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों का निकालोगे तो आई का आई के साथ में जो होगा सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट होगा, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों होंगे, तो इसलिए उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, बाकी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उनका जो डायरेक्शन होगा जे और के, यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस और के का मतलब जेड एक्सिस। तो एक्सिस चूंकि एक्स एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है, यानी आई कैप दिखा रहा है, आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है, इसका मतलब कि उसके परपेंडिकुलर जो फील्ड होगी उससे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से ये 20 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 10 क्वेश्चन आज करेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं हम लोग। Consider an electric field E = E naught x, where E naught is a constant, the flux through the shaded area। कह रहा शेडेड एरिया की बात करें, यहाँ पे फ्लक्स शेडेड एरिया पे कितना होगा। तो ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट्स दिया है। अगर मैं ABCD करके इसको, इस पे कुछ ABCD करके इसको इस तरह से मान लेते हैं, तो देखते हैं इसके साइड्स को हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं। तो इसके साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, तो AB को कैलकुलेट करोगे तो कोऑर्डिनेट मेथड से, तो अंडर रूट क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तो a - a यानी कि 0 हो जाएगा, a उसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर, a - 0 का, तो यानी a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, फिर a - a वो भी 0 हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर, यानी कि इस साइड कितनी आ गई, a आ गई। तो आप ab की बात करें तो ab कितना है, ये कितना लेंथ आ गया ab का, a आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे वाले साइड, दूसरे वाले नेक्स्ट साइड की बात करें, जैसे कि हमारा था ABCD, तो जितना AB होगा उतना ही CD होगा, वो आप कैलकुलेट करके यहाँ से भी चाहो कोऑर्डिनेट मेथड से। अब AD की बात करें चाहे BC की बात करें, तो AD की बात कर लेते हैं। तो a - 0, अगर हम इसकी बात करें तो a - 0 यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 - 0 तो वो तो रहेगा, फिर a - 0 यानी a स्क्वायर, इस तरह से ये √2 इंटू a आ जाएगा, यानी दूसरी वाली साइड क्या हो गई, √2a हो गई। तो ज़रा देखा जाए इस तरह से, ये स्क्वायर नहीं, देखने में फिगर में लगता है आपको स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, साइड एक लेंथ और एक ब्रेथ, एक की साइड एक साइड कितना है, a है, दूसरी वाली साइड √a है, यानी a और √2a, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हो गई। तो अगर इसकी एरिया निकाला जाए तो a इंटू √2a आ जाएगा इसकी एरिया, क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे फ्लक्स निकालने का। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, हम बात करें फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स फाई जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ES
यस लिखें या ए लिखें, कास जो होता है यहाँ पे जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, तो ई कास 45 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू की बात करें हम लोग तो ई की वैल्यू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है आई थिंक दिया हुआ है ई नॉट एक्स, कितना है ई नॉट एक्स है, तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू एक्स, डिग्री एक्स तो डायरेक्शन दे रखा है, इंटू यस यानी एरिया की बात करें तो ए इंटू टू अंडर रूट टू ए इंटू कास 45 की वैल्यू 1/√2। इस तरह √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई नॉट ए विल बी आंसर, ई नॉट ए हो जाएगा आपका आंसर। फाइन, तो ई नॉट ए स्क्वायर, सॉरी ई नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए, तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फाइन, आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा हुआ। सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द surface. These are the surfaces. Electric flux this is also a closed surface. We are saying closed surface. Plus q is also here. Plus q is also, it is also a closed surface. This is also a closed surface, and plus q is inside it. Plus q is inside it. So electric flux through the surfaces. कह रहा है कि how much electric flux will be there. तो let us check the options. So there are the options. In figure 4 is the largest. कह रहा फिगर 4 में सबसे लार्जेस्ट होगा, फिर दूसरे में लिखा इन फिगर सेकंड में सबसे लीस्ट होगा यानी सबसे कम होगा। तीसरा ऑप्शन में इन फिगर 1 इज़ द सेम एज फिगर 2 बट इज स्मॉलर देन फिगर 4, फिगर 4 में फिर लिखा इज़ द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। तो आप जानते हो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कि टोटल फ्लक्स जो होता है Q/ε0 होता है क्लोज सरफेस से, और सब में चार्ज प्लस Q ही है और सारे क्लोज सरफेस है, इसका मतलब सबका फ्लक्स कितना होगा Q/ε0 होगा। सो डी ऑप्शन इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा सारे फिगर के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम था, तो इसको आपने देखा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे 8 डाइपोल्स ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ई आर प्लेस इनसाइड ए क्यूब। कह रहे एक क्यूब है उसमें डाइपोल्स रखे हुए हैं, एक क्यूब है और क्यूब के अंदर क्या रखे हुए हैं, डाइपोल्स रखे हुए हैं। तो 8 डाइपोल्स रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मीन्स 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो कह रहे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ज़रा देखा जाए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अगर डाइपोल्स की बात करें तो नेट चार्ज वहाँ पे होगा ही नहीं, जीरो होगा, क्योंकि एक प्लस है तो एक माइनस है, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो उसके अंदर में। तो चूँकि जितने भी हो इस तरह से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल जो चार्ज है अंदर में वो जीरो है, इसलिए जो है फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको देखना है कि डाइपोल होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो उसका नेट जो चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस क्यूब के अंदर ये सारे डाइपोल्स है, इसका मतलब जो नेट चार्ज है उस क्यूब का क्या होगा, जीरो होगा अंदर में। इसका मतलब जब चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स के गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एंड नाउ द लास्ट एंड लिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करेंगे। करे चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। कह एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके ओपन एंड पर रखा हुआ है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज। तो कह रहा है वेसल के सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा। तो थोड़ा सा हम लोग फिगर बनाते हैं ताकि अभी तभी समझ में आएगा आपको। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, तो मान लिया ये सिलेंडर है, थोड़ा सा अच्छा फिगर नहीं बन रहा है। कह रहा है इसके एक सर पे मान लेते प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है। तो अब चूंकि ये अंदर में तो है नहीं, क्योंकि इसके बेस पर है, इससे सेंटर ऑफ द ओपन एंड, कह रहा ओपन एंड के सेंटर पर है। इसका मतलब क्या करना पड़ा हमें, एक और इसी के सिमिलरली एक सिलेंडर करना होगा, जिन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो इस तरह से इन पूरे सिलेंडर की बात करें तो पूरे सिलेंडर सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकली जो पूरे सिलेंडर ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, अंदर हो गया। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण जो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब चूंकि हाफ की बात करें तो हाफ के चूंकि आधा तो ये हमें इमेजिन कर लिया, तो इसके थ्रू जो बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट इमेजिन करके बनाया था, तो आधा पार्ट में ही जो है फ्लक्स होगा। तो क्या हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आंसर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। सो ये अपने हमारा टारगेट था इसका 10 क्वेश्चन का। तो इन 10 क्वेश्चंस को आप करिए फिर से अपने से और समझिए, और जो भी डाउट हो हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जो है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ 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 यू जस्ट लाइक द वीडियो।
Thank you all, my friends.